So, yet another glorification by the Lord to his devotees. Esam bhivar aham akhand bikunt yoga maya vibhute. This is one word. Akhand bikhund yoga maya vibhute. So Maya, Yoga Maya is a spiritual energy. Vibhuti means opulence. And Yoga Maya Vibhuti is Akhand Bikuntha. Akhand means unbroken. And Bikuntha means unobstructed. This means there's only one Lord. He is always a master of his spiritual energy. So that Lord then further said, Esam bhimar aham amalangri raja kirite. So what does the Lord do? Esam means the Brahmanas. Bhimar aham means I, Krishna, wear kirite on his helmet. What he put on his helmet? Amalangari Raja, the dust of the lotus feet of Vaishnavas. So can you see the Lord's humility is unparalleled. His devotion, we are devoted to the Lord up to one extent. But Lord's devotion to his dear devotee is unparalleled. Like in the case of when Prahlad Maharaj Nrsimhadev came, so when Prahlad Maharaj offered the prayers and Lord has immersed with the Vatsal Rasha. So the Nrsimhadev made Prahlad Maharaj to sit on his lap and he start licking. Like a cows, sometimes lick the calf. So the Lord भगवान का जो प्रेम है सभी जीव के लिए अनपैरेलल, आप सोच नहीं सकते कि भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं. एंड वी आर अनबॉदर्ड. ध्रुव महाराज के इंसिडेंस में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान का जो लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद मिलियंस ऑफ मदर्स. वो एक बहुत ही वेरी ईगर, उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं हमारा. तो वो सेज कि भगवान हमारे हृदय में है. ही इज इन द हार्ट विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, with hope. Maybe in this life, this person will look at me and surrender to me. But every life we disappoint the Lord. भगवान को हर लाइफ में निराश कर दे. कृष्ण कीप वेटिंग. और कब से इंतजार कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, एक लाइफ से दो लाइफ से, मिलियंस ऑफ लाइफ. स्टिल इज होपफुल वन डे वी लुक एट हिम. भगवान बता रहे हैं सो अलम अंग्रि रजा किरीटे विप्राम. सो भगवान वैष्णव के चरणों की धूल को अपने सिर पे लगाते हैं. कोना बेसहेत, हु विल बी देयर हु विल नॉट डू सो. It has multiple facets of meaning. It is said, when he said he so much respect, the honor the Lord has for the Vaishnavas and his dear devotees.
who will be there who will not do so? Then further said, Yad Arana Amba. Arana Amba means the water which has washed the feet of the Lord. Sadhya Punati. Sadhya means Turant, immediately. Punati means purified. Sah Chandra Lalamalokan. Sah Chandra Lalam. Lord Shiva, who carries the Chandra. Not full Chandra, half Chandra. In the very beginning days, na? Prathama, Dutiya, Tirti, very little, one portion. So it's called Sah Chandra Lalamalokan. So the Lord's everything is a very purifying, and as we know, when the here it is said that the Ganges water, the water of the Ganges is the remnants of the remnant left after the my feet is washed. That water sanctify the three words along with the Shiva who bears it on his head. So जो गंगा जी हैं वो कहाँ का वाटर है, कहाँ का पानी है? कारण जल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का. बामन देव जी ने जब अपना 2 स्टेप सेकंड स्टेप बढ़ाया तो बामन देव की कौन सा पैर था? लेफ्ट फुट की टो का नेल touch the covers and pierce, and the water start coming down from there, and that washed the feet of the Lord. And when the Lord was feet saw by the Brahma, so Brahma was very ecstasy. He came and he washed the feet with the Lord with his kamandalu jal. Brahma has one kamandalu. He washed. And because the Lord feet carries the kumkum on his leg, so when it is washed, that jala has washed, water is washed, and when Brahma also was, that water became which color? Pink color. So Ganges water has one particular color, which has the Lord's lotus feet washed and his dust and that kumkum. And that Ganges water, which came, will not go to the detail, but is given in the Srimad Bhagavatam, 5th canto. It has descended from that, and it took 1000 yugas to reach to the polar star, Dhruv Tara. Then just beneath the Dhruv Tara, there are 7 lokas which is inhabited by Saptarishis. So the Ganges descended first from Brahmalok to polar star, then it reached to the 7 Saptarishis lokas. There it was there. And then when the Devatas got to know and they wanted to have that purified jal, so they transferred, I put the rights in the purport, from billions of very sophisticated airplane, they transferred the Ganges from there to the Sarga. That much value they have for the Ganges water. It's not ordinary. Later on we know Sagar Maharaj. When he was doing yajna, so the Ashwamedh yajna, the horse was stolen by
Indra. Always he does so. तो उन्होंने घोड़ा को चुराया और लेके कहाँ पे बांध दिया उन्होंने? कपिल मुनि के आश्रम में ना, गंगा सागर के पास है कपिल मुनि का आश्रम। और बाद में it is Sagarmana has two wives. One wife has 60,000 and another wife had one son. What was the name? Ansuman. Or Ansuman. So anyway, 60,000 sons, they start searching where is the horse. And they have reached to the Kapil Muni ashrama and they saw that there's a horse is winding there. And they thought that maybe, or they thought that this Rishi, Kapil Muni, has stolen. And because they offended mentally, see, they have not told, they just thought of this sage might have stolen, or this sage is stolen horse. Because of that mental offense, they got burnt into the ashes. So how dangerous even the mental offense is also. Kapil Muni is not cursed. He didn't say anything. The offense itself was so heavy on them that they burnt into the ashes. Later on, I think Ansuman, he keeps searching, then he found this is there. Then he understood. Then he prays to the Kapil Muni. Kapil Muni was very pleased. And he takes the horse, then horse sacrifice was performed. Later on, बाद में वो अपने जो 60,000 जो उनके अंकल्स थे उनको प्यूरिफाई करना चाहे, उनका to so that they can have a right destination. तो कपिल मुनि बोलते हैं then Ganges water can help. तब अंशुमान जी he had a great tapasya, and by great tapasya somehow he wanted to bring Mother Ganges to the earth. She is there till Swarga, and some portion was transported and Sapta Rishis Lokas. So because of tapasya somehow he could not. Then he had a son called Dilip. Dilip also tried. He could not. Then Dilip had a son called Bhagirathi. It's called Bhagirathi Ganga. So Bhagirathi has pleased Mother Ganges. Mother Ganges came and said, I am ready, but I have two queries. First thing, when I come, my force is so much that if I come to earth, I will pierce the earth and go further. So I want some male person who can take it. So then he asked who could be. Then she said Lord Shiva. So that's the reason Lord Shiva. Then he pleases the Lord Shiva. Then Lord Shiva bears the Ganges on his jata. And another was, she said, when people come, and especially in Kali Yuga, take dip into me, so they will leave all the sinful activities on me. Then what will happen to me? Who will purify? Then Bhagirathi says, the lot of devotees of Krishna, they will appear, they will descending on this earth, and when they will take the dip, then they'll purify you. So this is detailed mentioned in the Brahma Vivartiya Puran, where the Brahma Purana says that Pancham Sasthani Varshani Mantra Upashaka Bhutale
there's a one devotee will descend who will be chanting Hare Krishna and spreading the glories of Hare Krishna. When that devotee comes and take the dip, they will purify the Ganges. So, yeah. So that is being about the Ganges. Now, the difference between internal and external energy. Prabhupada gives a lot of example to understand what is internal energy, what is external energy. Both are energy of Krishna. External energy कौन? भिन्ना प्रकृति. Why it is called भिन्ना प्रकृति? One of the example Prabhupada gives called nail. Nail has come, the nails जो हमारे नाखून है, is come from the body. But we can cut and separate out the nails. So the even external energy origin is Krishna. One example Prabhupada says about tape recorder. Prabhupada used to give. Prabhupada says, I am speaking, my voice is getting recorded. Then whenever you want, you can play. So that voice got separated from me. And another says, we can say it has no consciousness. And as we know, material world is just a reflection. Prabhupada is mentioning in the purport. And in spiritual world, there is a harmony. Or there is only one Lord. But in material world, everyone is trying to become Lord. So that is the difference. If we understand the Krishna's, the Lord's mindset, how much love the Lord has for his devotees. Sometimes the Lord carries the Paduka of Nanda Maharaj on his head. Sometime Yashoda Maya says, oh, bring that some wooden stool here. Somehow Krishna push, somehow not happening, somehow he push here, then he falls, again he push. So these are the wonderful pastimes which executed by the Lord in the Vrindavan Leela. So they have Vrindavan, they have called Kevalya Bhakti. Another one of the small pastimes Prabhupada recite about. Now once Krishna had a headache. Concluded that when the जब भक्तों की चरणों की धूल उनके सिर पे आएगी तब उनका हेडेक ठीक होगा. सो नारद मुनि वाज असाइन्ड ए टास्क क्योंकि भक्तों की किसी की धूल को लाना है. तो नारद मुनि गोज टू द मेनी इवन गोज टू द क्वींस ऑफ द्वारका. भगवान की पटरानियां थी कि ऐसा बोला गया कि जब आपके भक्तों के चरणों की धूल भगवान के सिर में लगी भगवान का हेडेक ठीक हो जाएगा. दिस इज अ पास्ट टाइम. सो दे डिनाइड. ओ हमारे चरणों की धूल भगवान के सिर पर लगी थी तो हमको नरक जाना पड़ेगा. तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं. दैट नो वन वाज रेडी टू गिव. The Narad Muni comes back to the Lord. He said, nobody is ready to give. Where to go now? The Lord says, go to Vrindavan. So when Narad Muni went to Vrindavan, वो गए वृंदावन गए तो वहाँ पे गोपियों से बोला कि भगवान को हेडेक है और भगवान का हेडेक तभी दूर होगा जब उनके भक्तों के चरणों की धूल. तो जब बोला तो गोपियों ने इतना उतावली हो गई. बोला जितना है ले जाओ जितना ले जाना आप लेके जाओ. तो उन्होंने अपने चरणों की धूल. अरे आप तो नरक जाएंगे यदि आपके चरणों की धूल आप देंगे और भगवान के सिर पे लगेगी तो बोला इट डज नॉट मैटर. हम नरक में जाने दो.
भगवान का हेडेक ठीक होने दो। तो उनका जो प्रेम है सेल्फलेस। अभी हम कभी भक्ति भी करते हैं ना कहीं हमारा उसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है, और सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी ना, जैसे कि ऐश्वर्य ज्ञान भक्ति, मिश्र भक्ति इज देन द बैकुंठ में। दे वांट टू सर्व द लॉर्ड बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल कंट्रोलर। किंतु गोलोक धाम में नन ऑफ देम देते, कोई उनमें से कोई नहीं सोचता कि भगवान वो भगवान है। इन गोवर्धन लीला में भगवान ने उठाया था तो लोगों को लगा था अरे जी कैसे उठा सकते हैं, सबने अपना अपना डंडा लगा दिया ऊपर से। तो भगवान को बोले थे भगवान तुम नहीं उठा रहे, हम लोग उठा रहे हैं। हाँ, तो उनको लगा था कि शायद ये इसका हाथ दब जाएगा नीचे गोवर्धन के नीचे। तो बाद में बोला कि जब लास्ट में जब पानी रुक गया तो भगवान को बोलते हैं सभी लोग तुम निकल जाओ, हाँ तो तुम दब जाओगे, हम लोग लगाए हुए हैं। नाइसली नरेट्स एंड डिपिक्टेड इन द लिटिल कृष्णा में, जैसे भगवान बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, थोड़ा सा करते हैं तो उनके जो स्टिक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, सो दे फियर्ड एंड दे रन। तो उनका जो प्रेम है वहाँ पे वो अद्वितीय प्रेम है। और ना दे फाइट विद द कृष्णा, मदर यशोदा लाठी से भगवान को मारती हैं, उनको रस्सी से बांधती हैं। तो जो जो वो प्रेम, उसकी जो जो जानकारी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ तक पहुँचने का हमको हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमको इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इज बियॉन्ड इवन बैकुंठा, द्वारका एंड मथुरा, कि भगवान जो वृंदावन वासी हैं उनके लिए पागल है, एंड कृष्ण अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं विदाउट दोज डिवोटीज। सो जो आपके लिए जो हम बताए प्रेम है भगवान का, वो एक डिग्री जिस दिन हमको पता चलेगा तो हमारे आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे कि कोई हु इज अ सुप्रीम लॉर्ड एंड ही हैज सो मच लव फॉर मी एंड वी आर अनबॉदर्ड। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी में कविता मबा जगदीश ममा जन्मनि जन्मनि शरीर भवतार भक्त रहित। तो जो भक्ति है वो अहेतु की बिना सिर्फ टू प्लीज कृष्ण। वृंदावन वासी में इवन द ट्रीज, द प्लांट, द वर्ड्स, even dust of Vrindavan, they want to please Krishna. भगवान का एक ही काम है, अपने भक्तों को आनंद देना, उनको ग्लोरीफाई करना। He has no other work. और भगवान इसके द्वारा, भागवत में भगवान क्या बोलते हैं, यत् प्रमाणम कुरुते, तो जो श्रेष्ठ लोग यत् आचरति श्रेष्ठ तत् एवेतरो जना, तो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वो एग्जाम्पल अदर्स शुड फॉलो। तो भगवान अपने उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि हमको जो भगवान बोल रहे हैं, भगवान अपने भक्तों को, वैष्णवों को इतना आदर करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्रेम करते हैं
and always he has no other work than serving his devotees. और भक्त लोग भी हैं भगवान के, जो प्योर डिवोटीज हैं, जो इटर्नल लिबरेटेड सोल्स हैं, they don't want anything from the Lord, they want to serve Krishna. और भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो अवतरित हुए, ये स्वयं भगवान है, अलग अलग लीला के द्वारा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए। से रामानंद राय के साथ ही टुक द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट, रामानंद राय बिकेम ए टीचर, जिससे कि उनके भक्तों का गुणगान हो सके। थ्रू सनातन गोस्वामी he broadcasted the science of devotion, भक्ति सिद्धांत और भक्ति। रूप गोस्वामी के द्वारा उन्होंने ही expanded the loving conjugal love, माधुर्य रस को उन्होंने इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया को दिया उनके थ्रू। तो भगवान के जो भक्त हैं और भगवान के बीच संबंध है, और जो भक्तों के बीच भी जो संबंध है वो अद्वितीय संबंध है। जैसे पता है यहाँ पे सभी लोग हीरो बनना चाहते हैं, सभी लोग they want to come Lord। यहाँ पे मेन कारण हमारा द्वेष है, एनवियसनेस है, जेलसी है। वहां पे भक्त लोग इतने खुश, उनका एक ही काम है भगवान के और दूसरे भक्तों की सेवा करना। आप वहां का जो स्थिति देख सकते हैं कि एक भक्त, उसको किसी दूसरे भक्त से कुछ चाहिए नहीं है। यदि किसी भक्त से कुछ गलती भी होती है उसको तो देखते ही नहीं है। एक ही चीज है कि उस भक्त का हम किसी भक्त का गुणगान कैसे करें, उसकी सेवा कैसे करें। इसलिए बोलते हैं ना, प्रेम का वहां सागर वो भी बढ़ रहा है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जो 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 प्रेम की पराकाष्ठा है वहां पे। और प्रभुपाद जी भगवान हमको वहां इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्लीज कम एंड स्टे, बट वी मस्ट बी क्वालिफाइड। और उसके लिए हमको यहाँ पे उस लेवल की चेतना को डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ आई एम ऑलवेज रेडी टू सर्व एनी वैष्णवा। जैसे बोलते हैं ना, भगवान को जब बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं, कंपेयर टू द सर्विंग द लॉर्ड। जितना वो दास बनता है उतना ज्यादा उसको ही फील मोर हैप्पी। तो वो चेतना हम आर्टिफिशियली करने से नहीं होगा, वो हमको जब हम श्रवण करेंगे गुरु से, जब श्रवण करेंगे पता चलेगा कि क्या वृंदावन धाम होता क्या है। भगवान की चेतना क्या है, भक्तों की चेतना क्या है वहां। तो हम उसको एस्पायर करने का, हम उसको we have to aspire to have that a wonderful consciousness. We have no trace of द्वेष तो छोड़ ही दो, even no material thing, शुद्ध सद्गुणा।
अव्यभिचारेण भक्ति, अव्यभिचार में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अहितों की जो भक्ति बोलते हैं, एंड जस्ट ट्राइंग टू सर्व भगवान और हिज डिवोटी। एक्चुअली स्पिरिचुअल में दे आर ऑल द सेम। भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त हैं, देयर इज नो डिफरेंस एज सच। भगवान के जो कावर्ड बॉयज हैं भगवान है, देयर ऑल द सेम एनर्जी। They have no contamination. So we should hear and will you seeing in this how the भगवान खुद बोल रहे हैं, यदि हम अपने वैष्णव के चरणों की धूल को अपने सिर, कौन होगा who will not do so unless is mad a fool। राइट है, गलत है, क्या चीज, ऑल इमटेरियल, भौतिक लेवल पे। हमको तो उस चेतना को पहले डेवलप करना है। हमारी उस चेतना से हम कोई भी भक्त है उसका, हम उसका गुणगान कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। दैट टू फॉर एवरी जीवा। जो भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, ही विश टू सर्व एवरी जीवा। इसी बोलते हैं ना कि उत्तम अधिकारी होता है, उसको सब भक्त दिखते हैं एक्सेप्ट आई। हम में भक्ति नहीं है, हमें सब में भक्ति दिखती है। न्यू फाइट में लगता है हम भक्ति ठीक कर रहे हैं, प्रॉब्लम सब में, उसमें भी है। आई एम लिटिल बेटर। There's a very, very new fight stage. गलती हमको सबको दिखती है, हमको लगता है ठीक है हमें गलती है, पर दूसरे से कम गलती है। क्योंकि वो चेतना, जब तक हमारी उस चेतना से, द्वेष से और उससे चेतना से हम बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सेवा छोटी बड़ी आगे पीछे दे ऑल दिस ऑल, हम जो सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो किसके लिए बनी? हमारी चेतना को इंप्रूव करने के लिए बनी। इट्स नॉट मेंट टू जस्ट पेपर पे कौन ज्यादा किया, बड़ा किया। दिस ऑल एंड ऑफ द डे देयर इज सम इमटेरियल। व्हाट सर्विस वी कैन डू फॉर द लॉर्ड? इफ यू विश यू कैन डू एवरीथिंग। तो भगवान ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उस सेवा के द्वारा हम अपनी चेतना को इंप्रूव कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो चेतना आप ही को इंप्रूव करनी है। कोई नथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। आपकी जो गलत इच्छाएं हैं, अटैचमेंट है, जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे, विल नॉट लीव यू। यू डू वॉट एवर, इवन डू चांटिंग, यू डू कीप सर्विंग। आपको बोलना हमको नहीं चाहिए, और वो हमारी इसलिए भक्तियों का बुद्धि योगा है। हम जब इसको शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस बुद्धि को अप्लाई करते हैं कि हमारी सही भक्ति है क्या, हमको सही भक्त बनना है। और उस स्थिति में आके हम इस दुनिया में रह के, यहाँ पे रह के अनपैरेलल आनंद में रह सकते हैं। आपकी एक आनंद की सागर में आप डिप कर सकते हैं, इवन इन दिस वर्ल्ड। फॉरगेट अबाउट गोइंग बैक, वो तो है। सो दैट इज अ ग्लोरीज ऑफ devotional service. Sat Goswami, we have an n number of examples where how they have depicted. So जब हम सुनेंगे, उनको हम फॉलो करेंगे, एंड प्रोसेस को जो प्रभुपाद जी ने दिया है, एंड एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है। वी मे बी लिटिल डाउन, पर उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमको खुशी, लिटरली the parameter we can judge, literally we are feeling more happier day by day.
कि जो इस स्थिति में आएगा खुश रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त है वो दुखी हो ही नहीं सकता। So यहाँ पे we'll be seeing more how the Lord is glorifying his devotees। और चैतन्य महाप्रभु के भी हम 5 मुख हो जाते हैं जब भक्तों का वो गुणगान करते हैं। यहाँ पे भगवान बोल सकते थे अरे इन्होंने तो तुम यू आर नॉट क्वालिफाइड टू कम टू वैकुंठ एंटर। भगवान बोले कि कुमारों के आपके चरणों की धूल, हमसे गलती हुई, हमको माफ कर दीजिए। भगवान में जो क्वालिटी वो पराकाष्ठ है, वो टॉप मोस्ट पिनाकल ऑफ ऑल है। भगवान में जो गुण है वो एक गुण भी यदि हम उनका गुण का थोड़ा सा हमको रियलाइजेशन हो जाएगा तो हम पागल हो जाएंगे। ऐसे हमारे भगवान है और उनके साथ आपका इंटीमेट संबंध है और आपके लिए वो ईगरली वेट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे करके हमारे धाम आ सकते हैं। जो हमारे आचार्य क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई उसमें वो नहीं शायद पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, ऐसा करेंगे तो विल गो बैक टू गॉड। प्रभुपाद जी की बहुत सारी, तो उनको हमको पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ व्हेन वी फॉलो द एंड देन वी कैन बी ऑल बी हैप्पी। हम खुश रहेंगे। किसी भी हो बाहर का तो चलता रहेगा इसका नो, आत्मा जो हमारा जो चेतना को तो बाहर चीज की अफेक्ट कर ही नहीं सकती इफ वी डिसाइडेड नॉट टू गेट अफेक्टेड। अदरवाइज छोटी छोटी चीज में हमारा दिमाग घूमता रहेगा। सो लेट्स ट्राई वट एवर डिग्री वी कैन एंड एटलीस्ट उस दिशा में हम आगे बढ़ सके जहाँ पे हमको भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति असीमित प्रेम और सेवा का भाव जागृत हो सके। और जो सेवा करने में जो खुशी है वो सेवा कराने में खुशी नहीं है। तो ना बोलते ना भगवान बनने में इतना आनंद नहीं है, भक्त बनने में जितना आनंद है। So we should try that. I will stop here. गंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गो प्रेम नंदे हरि हरि।